up. So today we are going to discuss the current affairs from 14th November to 20th November. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਯੂ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਜੁਆਇਨ ਆਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੀਡੀਐਫ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਿੰਕ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ for your benefit, so you can attend this live and post your comments also niche in the comment section to if you have any queries. If you want to connect with me directly, you want to discuss your doubts, just message me on this number, WhatsApp kar do, we will interact. I'll give you a specific time to talk on the call also. एक बार WhatsApp me on this number to discuss your preparation in detail. ठीक है जी, let's see the topics for today. These are few of the topics that we are going to discuss. Again, as I told you, मेरी discussion च the most important topics ਜਿਹੜੇ most probable है exam ਦੇ ਵਿੱਚ in one way or the other ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, that is what I discuss. Also, even if these topics are not asked, then आप क्या कर सकते हो that you can use them in your answers. These are such important topics that you should mention them in your answers or essays. ठीक है? So that is why ਇਹ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਆਰ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ, that is COP29 ਬਾਕੂ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ। ਬੇਸਿਕਸ ਇਹ ਕੌਪਸ ਦੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ COP29 COP16 ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, what is the basic behind this? ਸੋ ਦੇਖੋ 1992 ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਰਥ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਵਿਚ ਵਾਸ ਹੈਲਡ ਇਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰੀਓ ਸਮਿਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਆਊਟਕਮ ਸੀ, that is UNFCCC, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ CBD ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਜ਼ਰਵ ਦੈਟ, ਉਹਦੇ ਲਈ this agreement of framework was signed. And finally Agenda 21 that basically dealt with कि 21st century में जाके क्या अपने goals होने चाहिए, 21 goals of the 21st century, right? So that is there. Now Agenda 21 is the goals that the humanity has to follow, but these two are kind of conferences जहाँ पे countries हर साल they meet to discuss particular matters related to climate change and related to biodiversity, right? So इन्हीं gatherings को where countries come and sit to decide on particular matters, those are called as COP meetings या conference of parties. जो इनकी parties हैं, the countries who are party to these agreements, they sit and talk. Those are basically called as COP meetings. ठीक है, बेसिक समझ आ गया ये कॉप है क्या, राइट? नाउ UNFCC की टॉक्स जो हैं 29 मीटिंग्स आज तक हो चुकी हैं। सो इस साल जो चल रही है दैट इज COP29 गोइंग ऑन इन बाकू अजरबैजान। अजरबैजान कंट्री का नाम है, बाकू इज द सिटी देयर। अच्छे से मैप पे लोकेट करो, क्वेश्चंस कैन बी देयर। अजरबैजान, उसके आसपास बाउंड्रीज कौन सी हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्या है, वाटर बॉडीज कौन सी है, बहुत ध्यान से देखो, राइट? इन द सिमिलर फैशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड 16th मीटिंग आज चल रही है इस साल में 2024 में, एंड दैट इज गोइंग ऑन इन कोलंबिया विच इज इन साउथ अमेरिका, एंड वहां की सिटी काली वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, देयर इट इज हैपनिंग। सो ये दोनों ही इस साल साइमल्टेनियसली चल रही हैं, इसीलिए यू आर सीइंग कि पैरेलली इनके ऊपर न्यूज आइटम्स, आउटकम्स, डाटा वगैरह आ रहा है। ठीक है, सो पिछले आर्टिकल, पिछली डिस्कशन लास्ट वीक भी मैंने दोनों डिस्कस की थी बैकग्राउंड के साथ। यू शुड वॉच दैट टू नो द बैकग्राउंड ऑफ दीज टू, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द फॉरवर्ड थिंग्स, या आगे क्या आउटकम्स वगैरह इनके कॉप्स के क्या आ रहे हैं, राइट? ऑल्दो नेक्स्ट क्लास में अगेन आई विल बी डिस्कसिंग दीज, क्योंकि अभी प्रॉपरली सारे आउटकम्स अभी तक इस डिस्कशन तक नहीं आए हैं मेरे पास। सो नेक्स्ट डिस्कशन में अगेन COP29 के आउटकम्स आई विल बी डिस्कसिंग, COP16 के आगे हैं, दोज आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट UNFCC। सो UNFCC की 29 मीटिंग्स आज तक हो चुकी हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट वंस हैं that you should remember are these 4 presented in front of you apart from the current ongoing one, वो तो important है ही। सबसे पहले क्योटो में, क्योटो इज अ सिटी इन जापान, वहां 1997 में कन्वेंशन हुई थी या मीटिंग हुई थी वेयर पार्टीज अग्रीड कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना इन्वायरमेंट को हार्म करती है उनको रिड्यूस करेंगे, एंड दिस वाज द टारगेट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज।
यानी कि कंट्रीज लाइक यूएस, रशिया, यूके, दे विल बी फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग देयर ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना के लिए कोई कमिटमेंट्स नहीं थी। दैट इज वाई यूएस वगैरह जो है दे आर रिलक्टेंट टू फॉलो द क्योटो अग्रीमेंट ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ देम हैव फॉलोड मेनी ऑफ द पार्ट ऑफ देयर कमिटमेंट्स। ठीक है, दैट इज वाई दिस क्योटो अग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद 2015 में आया Paris deal या Paris agreement. Now this is very crucial. This is different from Kyoto also. कैसे? Kyoto protocol में सारा burden developed countries पे डाला गया था. But in Paris deal, now the responsibility has also been given to the developing countries. So Paris deal में basically क्या होगा? सारी countries अपने हर हिसाब से नेशनली डिटर्मिन्ड कमिटमेंट्स देंगी। यानी एवरी पार्टी विल बी टेलिंग कि भाई हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एनडीसीज, नेशनली डिटर्मिन्ड कमिटमेंट्स, राइट? दैट इज व्हाई दिस पेरिस डील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑलरेडी आई थिंक पढ़ चुके होंगे। इन्वायरमेंट के सेक्शन में विल बी कवरिंग इन आर फुल जीएस बैच ऑल्सो। इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर देन ज्वाइन आर जीएस बैच, दैट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि ये सारी चीजों के बेसिक्स एंड बैकग्राउंड जो है क्लासेस में डिटेल में डिस्कस होते हैं। करंट अफेयर्स में वी डिस्कस जस्ट दी ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स इन दीज टॉपिक्स। ठीक है, सो बेसिक्स अगर क्लियर करने हैं, ज्वाइन द फाउंडेशन बैच, और उसके लिए आप गिवन नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज आवर नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट एट एनी टाइम, राइट? नाउ पेरिस डील में ये एनडीसीज डिसाइड की। आपको इंडिया की एनडीसीज याद होने चाहिए। प्लीज इफ यू नो comment in the comment box that what are the NDCs or promises made by India at the Paris deal, राइट? उसके बाद ग्लासगो में हुआ COP 26। वहां डिसाइड किया गया कि जो भी इन्वायरमेंट को हार्म करने वाली सब्सिडीज हैं उनको कम किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। कंट्रीज आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। देन लास्ट ईयर जो COP हुई थी, दुबई में हुई थी, वहां इंपॉर्टेंट लॉस एंड डैमेज फंड जो है एक्चुअली एस्टैब्लिश कर दिया गया था। इसकी बातें तो बहुत देर से चल रही है, बहुत कॉप्स में डिस्कशन होती है, बट एक्चुअली लास्ट ईयर इसको एस्टैब्लिश किया गया है। लॉस एंड डैमेज फंड क्या होता है? जैसे यूएस वगैरह कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज है, दे हैव डेवलप्ड अ लॉट, बट दे हैव इन देयर डेवलपमेंट प्रोसेस डैमेज्ड द इन्वायरमेंट ऑल्सो। तो जो उन्होंने लॉस और डैमेज क्रिएट किया है उसके बदले में दे विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियली, राइट? और अब ये पैसे का क्या किया जाएगा? ये फंड तो क्रिएट कर दिया। दिस फंड विल बी यूज्ड टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज इन रिड्यूसिंग देयर क्लाइमेट इम्पैक्ट, या ऐसी कंट्रीज दैट आर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, उनकी मदद के लिए इसको यूज किया जाएगा, राइट? सो दिस फंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। नाउ इसके बाद COP 29 इस बैकग्राउंड में इस साल कंडक्ट की जा रही है अजरबैजान में, राइट? नाउ ये कॉप्स होती तो है, मीटिंग्स होती तो है, इनका बड़ा इशू क्या है? फर्स्टली यहाँ बैठ के कंट्रीज बड़ी बड़ी बातें तो करती हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी पुअर। इस वजह से क्लाइमेट चेंज के लिए जो कमिटमेंट्स हैं एमिशंस कट करने की, वो कमिट या कंप्लीट नहीं हो पा रही। सेकेंडली, क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए पैसा चाहिए, राइट? लेट्स से आप कह रहे हैं कि प्लास्टिक यूज करना बंद कर दीजिए बिकॉज प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर क्लाइमेट, यू नीड बेटर ऑल्टरनेटिव्स। बेटर ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे? ग्लास बॉटल्स होती हैं, राइट? जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, एक so plastic bottle is much cheaper than a glass bottle, right? Plastic bottle can be sustained for a longer time also sometimes, ठीक है? So मतलब कहने का है, this transition from plastic to alternatives is going to be expensive, इसके लिए पैसा चाहिए। So वो फाइनेंस है जो अभी तक कंट्रीज जो हैं क्रिएट नहीं कर पाई हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया। इंडिया के लिए प्लास्टिक हटाना उतनी प्रायोरिटी नहीं हो सकता जितना गरीबी हटाना, राइट? So India is a developing country that focuses on socio-economic development more than the environmental goals. ठीक है? एनर्जी सबको प्रोवाइड करना इंडिया के लिए पहला ऑब्जेक्टिव है, देन क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना, राइट? सो दैट इज वाई ये ट्रांजिशन साथ साथ में कराने के लिए वी नीड पैसा, वी नीड फंडिंग, जहां सारी कंट्रीज को मिलकर कंट्रीब्यूट करना होगा एंड मेजर शेयर विल कम फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड, राइट? So that is where the COPs have not been able to provide a concrete solution. Firstly, climate finance नहीं provide किया है. Secondly, emissions cut के लिए जो implementation चाहिए commitments की, वो नहीं हो रही है. आपने देखा होगा कि ट्रम्प जब पहले president बने थे US के, he exited from the Paris agreement also. He said we will not follow the Paris agreement. This was a very big setback to the COPs, to the Paris agreement.
क्योंकि जहां कंट्रीज मिलके डिसाइड करना चाह रही हैं कि फ्यूचर क्लाइमेट कैसे मैनेज किया जाए क्लाइमेट के चैलेंजेस को, वहां एक बड़ी कंट्री, द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इटसेल्फ इज पुलिंग इटसेल्फ आउट। तो फिर कमिटमेंट्स कैसे पूरी होंगी, राइट? सो दैट इज द बिग इशू अबाउट दीज कॉप्स। सो अब क्या कर रहे हैं, इसी बैकग्राउंड को देखते हुए द लेटेस्ट कॉप 2024 में जो कॉप हो रही है, द ऑनगोइंग कॉप, दैट इज फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस के लिए कोई डेडिकेटेड सॉल्यूशन क्रिएट किया जाए, दैट इज द फोकस ऑफ दिस कॉप, राइट? सो इसके लिए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल सेटअप करने का टारगेट है, यानी कि ऐसे समझ लो इजी वर्ड्स में, एक फिक्स्ड अमाउंट तय की जाएगी भी, लेट्स से 100 करोड़ हमें फंड क्रिएट करना है क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को मीट करने के लिए, अडेप्टेशन, मिटिगेशन, एवरीथिंग में हमें इतना पैसा चाहिए। सो एक फिक्स्ड अमाउंट विल बी एस्टैब्लिश्ड, दिस विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है, दे हैव मोर रिसोर्सेज ऑल्सो। हमें तो जैसे इंडिया को सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है, अफ्रीका को, चाइना को। सो डेवलप्ड कंट्रीज विल कंट्रीब्यूट। बाय 2025 ये फंड तैयार हो जाना चाहिए, और 2025 के बाद इसको पैसा लगाना कंट्रीज के ऊपर क्लाइमेट चेंज के लिए शुरू कर दिया जाएगा। दैट इज द टारगेट, राइट? अभी हमें देखना है कि ये टारगेट अचीव कर पाते हैं कि नहीं, इसका आउटकम और क्या होगा, इस कॉप में और क्या डिसीजंस लिए जाएंगे। अभी तक ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल कार्बन मार्केट एक क्रिएट की जाएगी, राइट? नाउ दिस इज अगेन अ बिग कॉन्सेप्ट, आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट इन दिस डिस्कशन, एक पूरी क्लास लग जाती है। यू विल बी कवरिंग इट इन द इन्वायरमेंट सेक्शन, सो वेट फॉर दैट, जीएस कोर्स में आपका ये कवर हो जाएगा, राइट? सो देयर यू कैन डील विद इट, ठीक है जी? सो दिस इज द बेसिक ऑफ दिस कॉप 29 दैट वी सॉ। नाउ आगे बढ़ने से पहले अगेन वही हाईलाइट कर रही हूँ दैट जीएस कोर्सेज आर रनिंग फॉर पीपल हु आर कंप्लीट बिगिनर्स। आपको कुछ भी नहीं आता है एंड यू आर एस्पायरिंग टू बी एन ऑफिसर, एसडीएम, तहसीलदार, डीएसपी, आप जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं पंजाब लेवल या इंडिया लेवल पे अगर बनना चाहते हैं, ज्वाइन आर जीएस बैच टू कवर इंटायर सिलेबस, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, यू हैव कवर्ड द बेसिक्स एंड नाउ यू वांट टू प्रैक्टिस, रिवाइज, लर्न how to write answers, then join our mains test series program. These are the two most relevant programs for an aspirant at this point of time, जब नोटिफिकेशन नहीं आई है। आप या तो इस कैटेगरी में हैं या इस कैटेगरी में, डिसाइड व्हाट इज योर लेवल एंड गो फॉर द कोर्स सुटेबल फॉर यू, ठीक है? अपनी प्रेपरेशन को तैयार रखिए, नोटिफिकेशन चाहे कभी भी आ जाए, यू शुड बी एबल टू सिक्योर अ रैंक इन दिस ईयर्स एग्जाम, दैट शुड बी योर टारगेट। और उसके लिए syllabus completion, practice, these are the two areas that you need to focus, ठीक है? So उसी के लिए ये courses है, you can contact us directly on this number for knowing any further details on our courses, ठीक है जी? नाउ नेक्स्ट कॉप 16 से रिलेटेड है। सो अभी मैंने कॉप का बैकग्राउंड बताया आपको 16 का। सो उसके अब आउटकम्स आ गए हैं, राइट? सो क्या डिसीजंस लिए गए हैं इस कॉप 16 में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड? फर्स्टली ये डिसाइड किया गया है कि इंडिजीनियस कम्युनिटी को यूज किया जाए फॉर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। अब इंडिजीनियस कम्युनिटी क्या होता है? अब देखो, ऐसे बहुत सारे ट्राइबल एरियाज होते हैं, ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जहां वाइल्ड लाइफ इज लिविंग इन कोऑपरेशन विद द ट्राइबल पीपल, राइट? बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज है, नॉट जस्ट ट्राइबल, अदर टाइप ऑफ कम्युनिटीज दैट आर लिविंग इन कॉन्सोनेंस विद द बायोडाइवर्सिटी। तो हर जगह गवर्नमेंट, दीज countries will be focusing on using indigenous community for biodiversity management, ठीक है? फर्स्ट। सेकेंडली, फंडिंग, पैसा तो चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा बिना पैसे के तो आप कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज ये सब नहीं कर सकते। सो उसके लिए इन्होंने बायोडाइवर्सिटी फंड अलग से बनाया है, फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसको काली फंड भी कहा जाएगा, काली, सिटी वेयर इट इज बीइंग हैपनिंग, सो इसीलिए काली फंड, राइट? इसके फीचर्स याद कर लो, प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सो कंपनीज एंड कोऑपरेशंस दे कैन पुट मनी इनटू दिस फंड, कंप्लीटली वॉलेंटरली है ये, कोई फोर्सफुल नहीं रहेगा। जैसे सीएसआर हमारे इंडिया में मैंडेटरी है, दिस काली फंड विल बी वॉलेंटरी। सो कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है कंपनी? 0.1% ऑफ देयर रेवेन्यू और 1% ऑफ देयर प्रॉफिट दे कैन कंट्रीब्यूट, वॉट एवर सूट्स देम, राइट? इट इज एक्सपेक्टेड कि इस फंड के थ्रू 1 बिलियन पर ईयर द वर्ल्ड विल बी एबल टू रेज पर ईयर $1 बिलियन for biodiversity conservation.
एंड इट इज बीइंग डिसाइडेड कि 50% ऑफ दिस फंड दैट इज जनरेटेड ये इंडिजीनियस कम्युनिटीज को दिया जाएगा ताकि वो अपने नेचुरल वेज में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना दैट इज देयर, ट्री स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज, birds, fishes, all of these is comes under biodiversity। ठीक है, सो उस सब के लिए ये हम कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी डिफेंस। ठीक है, देखो बायोडाइवर्सिटी को सबसे बड़ा थ्रेट है इन्वेजिव स्पीशीज से, राइट। सो उसके लिए टारगेट किया गया है कि बायोडाइवर्सिटी डिफेंस बनाया जाएगा, राइट। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स प्लीज डोंट वरी, अगेन एज आई टोल्ड यू एनवायरमेंट के बेसिक सेक्शन में आपका ये कवर होगा, इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती हैं, राइट। देन मोमेंटम फॉर ब्लू, नेक्स्ट टारगेट क्या है, मोमेंटम फॉर ब्लू, यानी कि मरीन बायोडाइवर्सिटी पे भी फोकस किया जाएगा। ब्लू का मतलब है मरीन, ओशन रिलेटेड, वाटर रिलेटेड, राइट। सो बायोडाइवर्सिटी सिर्फ टेरेस्ट्रियल पे नहीं फोकस किया जाएगा, मरीन बायोडाइवर्सिटी पे भी फोकस किया जाएगा। वन हेल्थ अप्रोच को अपनाया जाएगा। वन हेल्थ अप्रोच मतलब एनिमल, ह्यूमन सबको मिला के हेल्थ पे फोकस किया जाएगा, बिकॉज टुडे व्हाट इज हैपनिंग इज मेनी डिसीजेस आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ह्यूमंस टू एनिमल्स, एंड दिस इज हैपनिंग, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी इज गेटिंग थ्रेटेंड। सो वन हेल्थ अप्रोच पे फोकस किया जाएगा। एंड फाइनली इनोवेशन बहुत कर रहे हैं हम, राइट। जीएम क्रॉप्स बना दिए हैं, माइक्रो आरएनए आ गया, डीएनए एडिटिंग टेक्नोलॉजी आ गई है। इसके फायदे तो हैं बट इट कैन इम्पैक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो। सो दिस कन्वेंशन सेज दैट इनोवेशन विद कॉशन, इनोवेशन करेंगे बट उसका इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी शुड बी जज्ड। ठीक है, सो दीज आर द मेजर आउटकम्स ऑफ दिस। ठीक है, आप इसको इस न्यूमेरिक से याद कर लो, बायो डिफेंस, बायो डिफेंस। ठीक है, तो बायो मतलब ब्लू, मोमेंटम फॉर ब्लू, इंडिजिनियस कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, वन हेल्थ अप्रोच, डिफेंस यानी कि इन्वेजिव स्पीसीज से डिफेंस क्रिएट करना, इनोवेशन विद कॉशन, एंड फंडिंग, बायोडाइवर्सिटी फंडिंग या काली फंडिंग क्रिएट करना। इस तरीके से आप ये 6 पॉइंट याद रख सकते हैं, राइट। दिस विल बी फॉर कॉप 16 आउटकम। कॉप 16 पूरा हो गया, कॉप 29 हमारा नेक्स्ट डिस्कशन में भी चलेगा, राइट। कॉप 16 अगेन वही चैलेंजेस है जो हमने पहले डिस्कस किया, कमिटमेंट्स करते तो है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पैसा नहीं होता। ये दो बड़े चैलेंजेस है फॉर ऑल द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैपनिंग इन दीज मीटिंग्स रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सो ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है इजीली इन मेंस ऑल्सो, राइट। नाउ करंट अफेयर में वोल्केनिक करप्शंस चल रही हैं। इंडोनेशिया वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, आपने ज्योग्राफी के सेक्शन में पढ़ा होगा, रिंग ऑफ फायर, इंडोनेशिया फॉल्स इन दैट, और यहाँ पे वोल्केनिक करप्शंस बहुत रहती हैं, राइट। सो इफ यू सी देयर आर 130 एक्टिव वोल्केनोज इन इंडोनेशिया इटसेल्फ, राइट। तो लेटेस्ट वन जो इरप्ट हुआ है दैट इज माउंट लिवोटोवी, राइट, लाकी लाकी वोल्केनो। इट इज ऑल्सो अ ट्विन वोल्केनो। ट्विन वोल्केनो का मतलब क्या होता है, ट्विन पीक्स आर देयर, राइट, दो पीक्स हैं जहां से वोल्केनिक eruptions हो रही हैं, राइट। सो इसको याद रखना, ट्विन वोल्केनो पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इट इज एन एक्टिव वोल्केनो ऑन फ्लोर्स आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, राइट। ठीक है, सो रिंग ऑफ फायर का कॉन्सेप्ट आप बेसिक ज्योग्राफी में कवर कर लेंगे, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, बट इसे करिए जरूर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि इंडोनेशिया में भाई इतने सारे वोल्केनिक eruptions क्यों होती हैं, राइट, व्हाई इट इज सो मच प्रोन। सो वो सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट। सो टॉपिक कहना क्या जाता है कि भी देखिए हम एग्रीकल्चर, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर इंटेंसिव इकोनॉमी। सो अब वो एग्रीकल्चर से हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बाहर देशों में भी भेज रहे हैं। यू कैन सी द नंबर, 2004 में सिर्फ 8 बिलियन तक के अराउंड हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट टुडे वी आर एक्सपोर्टिंग 53 बिलियन अराउंड, 6 फोल्ड इंक्रीज हैज बीन सीन, राइट। नाउ द आर्टिकल इज सेइंग कि भाई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, अच्छी बात है, वी आर एक्सपोर्टिंग, वी आर गेनिंग इनकम, वी आर गेटिंग फॉरेन एक्सचेंज, ऑल ऑफ दैट बिजनेस इज हैपनिंग, बट देयर आर सेवरल इश्यूज ऑल्सो, राइट, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स कम विद मेनी मेनी इश्यूज। कैसे इश्यूज? फर्स्टली ग्राउंड वाटर स्ट्रेस, आप एक्सपोर्ट कैसी कैसी चीजों का कर रहे हैं, राइस,
लार्जेस्ट शुगर केन, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स। और ये दोनों ऐसी कमोडिटीज है जिनमें पानी बहुत लगता है, राइट। इट इज बीइंग सेड बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, उन्होंने ये सब वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स खुद उगाना बंद कर दिया है, रादर दे आर इम्पोर्टिंग इट। क्यों? अपने पानी को कंजर्व करने के लिए। तो इंडिया क्या कर रहा है, अपना पानी यूज करके ये क्रॉप्स उगा रहा है और उन कंट्रीज को बेच रहा है, राइट। सो इससे इंडिया का वाटर एक्सपोर्ट हो रहा है इनडायरेक्टली, विच कैन हार्म इंडिया इन लॉन्ग टर्म। सस्टेनेबल वे नहीं है ये बिजनेस कंडक्ट करने का, राइट। सो दिस इज अ वेरी मेजर इशू, इसे याद रखना। सेकेंड, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स से हमारा फोकस क्या है, भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, डोमेस्टिक पॉपुलेशन को भी सर्व करो और बाहर भी एक्सपोर्ट करना है। इससे क्या होगा, यू विल यूज लॉट ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स आप बहुत यूज करेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। सो उससे क्या होता है, chemical use is leading to entire agricultural ecosystem getting impacted. Soil pollution, water pollution, farmer inhaling the pesticides and insecticides, consumers consuming the in chemicals and getting cancer and other diseases. India में कितना cancer prominent है, especially cancer belt is there in the Malwa belt of Punjab, ठीक है। all of these are the reasons, ठीक है। और पूरे पॉलिनेटर्स को भी ये इम्पैक्ट करता है, सो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट, ठीक है। थर्ड इशू क्या है, लेबर का कंसर्न। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स तो कर रहे हैं, बट एग्रीकल्चर में जो लेबर है उसकी हालत क्या है, पुअर वेजेस, लॉन्ग वर्क आवर्स, हीट वेव्स आर गोइंग ऑन, मेंटल स्ट्रेस, physical stress they are witnessing. All of this has been witnessed in sugarcane plantations, tea plantations of Assam, राइट। एंड वाइल्ड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। जैसे आप असम या टी प्लांटेशन की एग्जांपल लीजिए, असम या नॉर्थ ईस्ट के एरिया में बहुत होती है ना। नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आपको ऐसी बायोडाइवर्सिटी लाइक राइनोज वगैरह बहुत मिलेंगे। सो अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रही है मेजरली फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ह्यूमन इज कमिंग इन डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद दीज वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, क्योंकि हम उनके घरों में जा जाके अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल लैंड तो लिमिटेड है, आप कहाँ जाओगे, फॉरेस्ट में जाओगे, यू विल एक्सपैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। सो इस वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स वी आर harming the wildlife also of our country because we want to export from agricultural commodities like tea and sugarcane, right? And grassland destruction भी हो रही है, जैसे कि शुगर केन की खेती देखिए, बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ ग्रासलैंड को खत्म करके शुगर केन की खेती की जा रही है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर द सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स विद द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, जो इस आर्टिकल में बात की गई है। यू कैन रीड द डॉक्यूमेंट लेटर, राइट। नाउ नेक्स्ट है, इंडिया कनाडा के बहुत इशू सामने आ रहा है और हमारे पंजाब पीसीएस के लिए दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एंड अगेन इट कैन बी आस्क्ड, इवन डायस्पोरा इश्यूज पे ऐसे और क्वेश्चन आ सकता है, देयर यू कैन इंक्लूड दिस डिस्कशन, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, कनाडा में एक एसटीएस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था विच इज स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए दिस इजी सिस्टम वाज क्रिएटेड। इसमें क्या बेनिफिट था, डॉक्यूमेंट्स कम चाहिए होते थे, प्रोसेसिंग टाइम कम था, एप्लीकेशन फी कम था। सो इंडियन स्टूडेंट जो भी कनाडा के लिए स्टडी के लिए अप्लाई करता था, इट वाज इजियर फॉर देम टू गेट एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा एंड गो टू कनाडा इजीली एंड विद लेस कॉस्ट, राइट। नाउ कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि भाई नवंबर 2024 से, मतलब दिस मंथ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ से ये एसटीएस सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। बट क्वेश्चन इज वाई कनाडा ये खत्म क्यों कर रहा है, बिकॉज पहले ही इंडिया से इतनी माइग्रेशन कनाडा की तरफ हो चुकी है, जिसकी वजह से नाउ माइग्रेंट्स के आने की वजह से लॉट ऑफ इश्यूज कनाडा इज फेसिंग। फर्स्टली इन द फॉर्म ऑफ हाउसिंग, घरों के लिए जगह नहीं है, इतने लोग हैं उनको घर नहीं मिल पा रहे हैं। कनाडा डज नॉट हैव दैट मच हाउसिंग। इवन बसेस, रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, सारी चीजों पे स्ट्रेस होता है व्हेन लॉट ऑफ माइग्रेंट्स कम इन एंड द सिटी डज नॉट हैज द कैपेसिटी टू प्रोवाइड देम, राइट। सो इसी वजह से कनाडा इज स्टॉपिंग दिस एसटीएस सिस्टम। नाउ दिस इज गोइंग टू डायरेक्टली इम्पैक्ट द इंडियन स्टूडेंट। इंडियन स्टूडेंट के लिए खर्चा बढ़ेगा, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ेगा, ज्यादा आपको एग्जाम्स वगैरह देने पड़ेंगे, टफर एग्जामिनेशन सिस्टम हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी, ठीक है। सो इंडियन स्टूडेंट्स आर बीइंग एक्चुअली डिस्करेज्ड फ्रॉम गोइंग टू कनाडा, और कनाडा डज नॉट वांट टू रिसीव देम एनी मोर, राइट। सो ये आप एज एन एग्जाम्पल अपने एसेस वगैरह में डाल सकते हैं डायस्पोरा इश्यूज में।
ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया नाइजीरिया। नाउ व्हाई इज दिस न्यूज, क्योंकि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर 17 ईयर्स के बाद नाइजीरिया को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है इन 17 ईयर्स, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइजीरिया, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर अभी भी इनको विजिट कर रहा है। सो इफ यू सी अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट इटसेल्फ इज इम्पोर्टेंट, उस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नाइजीरिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इट इज अ कॉमनवेल्थ कंट्री ऑल्सो, इंडिया के इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबर भी है, और इंडिया की तरह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के लिए भी एडवोकेट करती है। एंड फिर अगर आप देखो, इंडिया की बहुत बड़ा डायस्पोरा इज स्टेशन्ड इन दिस कंट्री, मोर देन 50,000 इंडियन पीपल आर स्टेइंग हियर, एंड इंडिया ऑल्सो हैज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, businesses, minerals and all of that. That is why this country is very important for us. इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ विजिट किया विद आवर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब। सो 4 चीजों पे फोकस किया जा रहा है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी said that India and Nigeria will be focusing on 4 major security issues, सिक्योरिटी के सेक्टर पे। फर्स्ट इज ड्रग ट्रैफिकिंग, बहुत सारे ड्रग्स इस एरिया में से इंडियन ओशियन के एरिया में से इंडिया या अदर कंट्रीज में आ रहे हैं। सो दैट विल बी द एरिया वेयर बोथ द कंट्रीज विल बी फोकसिंग। टेररिज्म, पायरेसी, सेपरेटिज्म, ये 4 मेजर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जहां दोनों कंट्रीज मिलके दे विल बी वर्किंग टुगेदर, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द टॉक ऑल अबाउट। स्पेसिफिकली किसी कंट्री पे आना इज लिटिल डिफिकल्ट, बट दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका और डेडिकेटेड विजिट है, सो इसलिए इसको इंडिया नाइजीरिया का करो। अदरवाइज इंडिया अफ्रीका इज मोर लाइकली टू बी आस्क्ड, सो इंडिया अफ्रीका फुल प्रिपेयर्ड रखो। नाउ दिस नाइजीरिया इज इन न्यूज, सो इसको प्रिपेयर कर लो। इस आर्टिकल में, दिस आर्टिकल विल बी इनफ फॉर यू टू प्रिपेयर इट, यू कैन रीड द आर्टिकल लेटर, राइट। नाउ डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, तो उस पर कुछ नंबर्स आए हैं, यू कैन लर्न दीज नंबर्स। व्हाई डायबिटीज इंक्रीजिंग, यू शुड नो अनहेल्दी फूड हैबिट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, 20 मिनट की वॉक को हम गोल मानते हैं अपना, राइट। सो ऑल ऑफ दैट इज लीडिंग टू दिस। एंड वन मेजर कॉज इज टोबैको कंजम्पशन या सिगरेट कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग, उससे हमारी इम्यूनिटीज लो होती हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज का होना इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो दूज आर द एरियाज, इसको थोड़ा पढ़ लो। डायरेक्टली तो डायबिटीज पे इट इज लेस लाइकली कोई क्वेश्चन पूछे, बट एज अ पर्सपेक्टिव यू कैन पुट इट इन योर आंसर्स, एसेज एटसेट्रा। सो थोड़ा सा ये माइक्रो आर्टिकल रीड कर लेना, राइट। नाउ केरला में हलचल चल रही है इन द वे दैट केरला के आईएएस ऑफिसर्स को गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन। 2 आईएएस ऑफिसर्स जो हैं केरला के, वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, एन प्रशांत एंड के गोपालकृष्णन। ये बहुत फेमस हैं पहले फॉर हिज वर्क्स ऑल्सो, आपने इनके एथिक्स में वर्क्स वगैरह पढ़ेंगे या पढ़े होंगे। नाउ व्हाई हैव दे बीन सस्पेंडेड, सो देखिए, देयर इज कंडक्ट रूल्स दैट इज देयर फॉर ऑफिसर्स। जब आप ऑफिसर्स बन जाएंगे, आप फ्रीली किसी सिटीजन की तरह फ्रीली एक्ट नहीं कर सकते। यू हैव सर्टेन रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज टू abide by some values that you should uphold as an officer. You are not a common citizen to say anything or do anything or go anywhere or be like anything, right? You have responsibilities as a government official at all the times, even in your private life. ठीक है। सो इन ऑफिसर्स ने क्या किया है, देखिए, वन इशू इज, एक ऑफिसर ने अपने सीनियर को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया, विच इज नॉट अलाउड बाय द रूल्स। सेकेंडली, सेकेंड ऑफिसर ने एक रिलीजन बेस्ड व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, विच इज डायरेक्टली इन कॉन्ट्रावेंशन विद आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म, इसीलिए इन पे एक्शन लिया गया है। नाउ इनकी एक तो एग्जाम्पल्स याद रखिए, यू कैन कोट इट कि केरला में ऐसा कुछ हुआ था अगेंस्ट 2 आईएएस ऑफिसर्स। सेकेंड इज ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स, जिसपे क्वेश्चन आ सकता है। सो एक्चुअली आईपीएस ऑफिसर्स को कंट्रोल करने के लिए दीज रूल्स आर देयर, रेगुलेशंस आर देयर, कंट्रोल क्या, रेगुलेट करने के लिए इनके कंडक्ट को। नाउ दीज रूल्स क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, लाइक इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, कोई भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी आ जाए, आप किसी के फेवर में नहीं काम करेंगे। यू हैव टू वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। ऐसी वैल्यूज को अपहोल्ड करना है। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करना है, जैसे कि सेक्युलरिज्म, जस्टिस, इक्वालिटी।
ठीक है, वो यहाँ पे ब्रेक हुई है, इसीलिए एक्शन लिया गया। डू नॉट क्रिटिसाइज और एडवर्स कमेंट्स, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप पब्लिकली एडवर्स कमेंट्स नहीं दे सकते, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ, और आप गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करेंगे, दैट इज नॉट अलाउड। ग्रेवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होते हैं, आप इन हाउस कंप्लेंट्स ग्रेवियंसेस रजिस्टर कर सकते हैं, बट पब्लिकली यू कैन नॉट क्रिटिसाइज, सो द अदर ऑफिसर इज बीइंग बुक्ड अंडर दिस केस ऑल्सो। देन प्रेस में भी जाके आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, या कोई भी स्टेटमेंट्स वगैरह आप विदाउट परमिशन नहीं दे सकते हैं, बिकॉज अगेन आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, आपके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, आप विदाउट परमिशन वो इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। एंड फाइनली रूल्स कहते हैं कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो एक ऑफिसर के लायक नहीं होता है, right? You are an officer, you have certain rules and responsibilities, you have to abide by those at all the times, ठीक है? So that is what these rules says. इन 5 पॉइंट्स को एटलीस्ट याद रखो, क्वेश्चन अगर आ जाए you will be able to write them, ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट, गवर्नेंस के एरिया में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो कवर इट प्रॉपरली, राइट। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज एन इंपॉर्टेंट एरिया, क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार, उसमें से एक नया स्टेप दैट दे आर थिंकिंग इज मेकिंग इट अ टूना एक्सपोर्ट हब। टूना इज अ टाइप ऑफ फिश विच इज वेरी मच प्रेफर्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट, सो अंडमान की ब्लू इकोनॉमी को यूटिलाइज करने के लिए टूना एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट विल बी फोकसिंग, ठीक है? यू कैन रीड द डिटेल्स लेटर। Now case study, because problem solving GS4 PCS में and even UPSC में आती है, so these kind of case studies you should know. झांसी उत्तर प्रदेश में we have seen कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में because of an incident 10 न्यू बॉर्न बच्चों की डेथ हो गई है, राइट? आग लगने की वजह से और हॉस्पिटल की मिसमैनेजमेंट की वजह से। नाउ दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, वहां पे कुछ भी आपको बड़ी स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ऑल द कंडीशंस विल बी मेंशन्ड लाइक आई हैव ट्राइड टू मेंशन हेयर, एंड दे विल आस्क यू कि यू एज एन ऑफिसर आप क्या करेंगे, एज एन STM, एज अ DC ऑफ दैट एरिया, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं। सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू जस्ट सिट एंड थिंक, राइट फ्यू पॉइंट्स की अगर आपके एरिया में आपकी जुरिस्डिक्शन के अंडर अगर ये सिनेरियो होता, what steps you will take, what will be your immediate measures, what will be your long term measures, ये लिख के आप मेरे साथ शेयर कीजिए, राइट? यू कैन शेयर ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, या आप इस डिस्कशन की कमेंट सेक्शन में लिखिए दैट हाउ विल यू हैंडल दिस कंडीशन व्हेन एक बच्चों के न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में फायर लग गई है, 10 newborns have died, and you come to know as an officer now that that hospital was uh, uh, going over capacity, 3 times the capacity patients handle कर रहा था, staff inappropriate था, fire directions they were not following, and maybe let's say administration की भी capacity lacking हो सकती है। So what will you do in this scenario? Immediate basis पे you have to focus on relief and all, लॉन्ग टर्म बेसिस पे यू हैव टू प्रिवेंट दीज थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग। सो उस लाइंस पे सोचिए, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखिए एंड यू कैन शेयर विद मी, राइट? वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर दैट, ठीक है जी। प्रीलिम्स जो 2 टॉपिक्स आ सकते हैं, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, कैन बी आस्क्ड इन PCS प्रीलिम्स, दिस वन UPSC rarely ask that, this can be asked in both the examinations, so इन्हें थोड़ा देख लो। ब्रिटिश राइटर हार्वे विंस बुकर प्राइज, बुकर प्राइज से पहला भी क्वेश्चन PCS आ चुका है। सो समांथा हार्वे हैज वॉन द 2024 बुकर प्राइज फॉर ऑर्बिटल, इनकी बुक है अ स्टोरी अबाउट अ सिंगल डे अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, राइट? सो अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर एक दिन के लिए कोई फंस जाए, दैट इज व्हाट शी हैज रिटन, ठीक है? सो इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। एंड देन इंडिया ने फर्स्ट अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल विद रेंज 1500 किलोमीटर लॉन्च की है। दिस इज इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? 5 times द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है? सो दैट इज देयर, इसकी रेंज 1500 रहेगी और ये कंप्लीटली इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। DRDO ने, हमारी जो एजेंसी है, उसने ये डेवलप किया है, दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। सो इन दोनों फैक्ट्स को याद रखना, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। दैट इज ऑल फॉर दिस डिस्कशन। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, you want to connect with me, you can use this number. If you want to enroll in our test series program, in our GS batches, join them now. Do not delay your preparation. कितनी देर टालते रहोगे? Start as early as possible because syllabus is huge. You need to finish that in a timely fashion. और timely तभी complete होएगा when you start timely. ठीक है जी? So that will be all the best to you. यदि PDF ले, you can join the Telegram group that is given in the description box. ठीक है जी? Thank you so much for joining.